हेलो एंड वेलकम बैक। ये आज के दिन का हमारा आखिरी सेशन है, बट आखिरी सेशन है, वॉक अभी बाकी है। Our next panel discussion digs deep into the critical question, how can the ecosystem shape opportunities for young people? Yet again, we would like to hear from other organizations, अन्य और संस्थाओं से जानते हैं कि वो इकोसिस्टम बिल्डिंग के लिए अपने ओर से क्या सहायता करती हैं, कैसे काम करती हैं और क्या स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं। इसके लिए मैं स्टेज पे हमारी आज की मॉडरेटर मिस आनंदिता मजुमदार को इनवाइट करना चाहूँगी। As a consultant with startup, Anandita is deeply involved in CFI program. Additionally, she is the founder of Equidiversity Foundation, an NGO dedicated to strengthening women and youth leadership in local rural governance, Panchayati Raj in West Bengal to promote gender responsive systems. Over to you, Anandita. Thank you so much, Niruja. लंच के बाद सुनीता ने एक प्रश्न किया था कि प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल उभर के आ रहा है, और मुझे लगा, मैं पीछे बैठी हुई थी और मुझे लगा एक तो प्रिंसिपल है, वो है करेज और रिस्क टेकिंग। लास्ट सेशन सेफ्टी पिन ऐसा पर्सन को चुना जिसका मतलब सोचती है बंगाली में, बोलती है टूटा फूटा हिंदी में, और बोलना पड़ेगा हिंदी और अंग्रेज़ी मिला के, तो इंग्लिश में बात करूँगी, ठीक है। लेकिन ये सेफ स्पेस के बारे में बात हो रहा था सुबह से, तो ये तो सेफ स्पेस है। गलत बोलूँगी, डांट देना, बोल देना, भूल बता रही हूँ, ठीक है। और अगर हंसी आए तो ज़ोर ज़ोर से हंस भी देना, ठीक है। अग्रीमेंट है ना? ठीक है। आज लास्ट जो सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सेशन है। इकोसिस्टम एक यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं। और जब हम इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, इकोसिस्टम का मतलब यूथ, उनके जो पीयर्स हैं, दोस्त हैं, जो उनके तरह है, जो उनके तरह नहीं भी है, उनके फैमिली है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, NGOs भी है, कल्चरल जो एक आइडियोलॉजिकल स्पेस है वो भी इकोसिस्टम में आता है। तो आज हम इसी को लेकर थोड़ा बातचीत करेंगे, क्या चाहिए होगा। और हमारे जो यहाँ पे जो आएंगे पैनलिस्ट, उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, वो ऐसा क्या है जो इस इकोसिस्टम के जो स्टेक होल्डर्स है उसको शिफ्ट करने में सहायक बनता है, या चैलेंज भी क्या आते हैं। इन सब मुद्दे को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आई हैव द प्रिविलेज ऑफ इनवाइटिंग वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड पीपल who have been in this sector for a long time. So please welcome Monjima Bhattacharya. Monjima is an independent researcher. She's and a writer based in Mumbai with over 2 decades of dedicated engagement in the Indian women's movement. Holding a PhD in sociology from JNU, she brings extensive expertise to her work. Previously a senior program advisor with American Jewish World Service, Monjima led research grant making on adolescent girls and early and child marriage in India. Welcome Monjima. हमारे साथ पुष्पा माई भी है, जो 22 साल से काम कर रही है ट्रांसजेंडर LGBT कम्युनिटी के साथ, हेल्थ को लेकर, वॉश को लेकर, और अभी सिफार के साथ एक्टिव सिटीजनशिप को लेकर। और माई EC इलेक्शन कमीशन और नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर है, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में वो मेंबर है, और पुलिस प्रोटेक्शन सेल का वो रिसोर्स पर्सन है। वेलकम पुष्पा माई। हमारे साथ कनिका सिन्हा है, कन्वीनर Commutiny, the youth collective. Kanika is a seasoned professional in youth development with over 19 years of experience. At Commutiny, the youth collective, she spearheads community facilitation across 18 states and drives partnerships for youth-centric development. Her leadership has garnered recognition, including the World Economic Forum's acknowledgement of the Saath Nirbhar campaign. Welcome.
Last but not the least, we have with us Ishani Bhattacharya, Specialist on Women and Work, Quest Alliance. Ishani is a dedicated development practitioner committed to social justice and gender equality, with a focus on designing and implementing interventions for adolescents and young people. She serves as the Women and Work Specialist at Quest Alliance's youth program. As a feminist, Ishani strives to incorporate a gender-inclusive lens into her work, continuously learning and evolving in her quest for equality. Welcome, Ishani. तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से. मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, थोड़ा स्पेस को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है? हाँ, तो ये पूछना चाहूँगी आप सभी से. एक तो है जब हम इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, जैसे यूथ कोई होमोजेनस ग्रुप तो नहीं है, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ है और उनके लिव्ड एक्सपीरियंस बहुत बहुत डाइवर्स है, कॉन्टेक्स्ट उनका अलग अलग होते हैं, तो उनका नीड्स अलग होते हैं. तो जब आप यूथ को देखते हो और इकोसिस्टम को देखते हो, उसको डिफाइन कैसे करते हो? मतलब आप लोगों के कम्युनिटी ऑफ यूथ क्या है? और दूसरा, जो इकोसिस्टम के साथ जो यूथ का जो मिलना, ये जो डांस एक रहता है, यूथ इन्फ्लुएंस करना चाह रही है सिस्टम्स को और सिस्टम उन पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है, ये जो डांस है इसमें बहुत सारे पावर इम्बैलेंस है. तो इसमें इक्विटी लाना ज़रूरी है, पावर को बैलेंस करना ज़रूरी है. तो कौन सा अप्रोच स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो ये बैलेंस को लाने के लिए? तो आई विल स्टार्ट विथ Kanika and then we'll take it from there. Thank you. Good evening, everyone. मैं कनिका, यहाँ पे I'm representing the Vartalip Coalition and Commutiny, the Youth Collective, and always carry Prava with me. Thank you so much, everyone, for a really fulfilling day. मुझे लगता है just deep gratitude to Safety Pin and to all the partners who've been part of this, because it's been a day of just grounding. I think इतने मज़ेदार experiences और इतना कुछ सीखने को मिला है. So I feel like we've said it all. It's all been said, ecosystems, everything's been spoken of. So there's little to add. But I do want to say, all the sort of my reflections from the first half of the day, आज दिन के समय, खास करके जब हमने young लोगों की बातें सुनी, and we're talking about safe cities, हम लोग space, you think of city and you think of a political space, a geographical space, an economic space. They're also a psychological space. They're also, they're an emotional space. And I feel like those are the things that came out so much more. When you heard young people talk about how engaging with their city transformed them, there's a space that sort of, they're referring to that we like to call the fifth space. So, it's boundaryless, it has no walls, it has no borders, it's an experience. And I think that's what any sort of city needs to offer. It needs to offer young people the opportunity to kind of just unleash themselves, their leadership, find themselves, find meaning, find relationships. What young people need, जो आप बोल रहे थे कि peers हैं, अपने जैसे दोस्त, अपने से अलग दोस्त, अपने माता पिता के साथ रिश्ता, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने educational institutions के साथ, अपने workplaces के साथ, अपने electoral representatives के साथ. Young people are everywhere, and every space sort of needs young people, and that's actually how we craft the vision statement for Vartalip, which is every youth a Jagrik, every space nurturing Jagriks. So a young person, every young person can be a self-awakened active citizen, must be a self-awakened active citizen. But every space that they occupy needs to enable that, needs to nurture that. And that's sort of the cross-sectoral, intersectional, intergenerational kind of richness that one hopes can be created, and I think that's what we
that's what today was about for me. So, I just want to cheer to that. I think just having created that kind of a space here, the whole, and again, just taking from the last point you were making is, young people have there's this burden on young people, ना, कि nation building उनके हाथ में है, समाज वही सुधारेंगे, देश वही बदलेंगे, तो ये सब तो जिम्मेदारी तो हम डाल देते हैं युवाओं पे, लेकिन वो ये जिम्मेदारी पूरी कैसे करेंगे? If we just think about the kind of hierarchical, patriarchal societies we live in, where do young people actually get that training, for lack of a better word, to take leadership? उनको choices, decisions, decision making का opportunity कहाँ मिलता है उनको? लेकिन युवा को देश बदलना है, टेबल पे आना है, सब कुछ करना है, सो पहले तो जगह नहीं होती टेबल पे, फिर हम बना भी देते हैं टेबल पे जगह, तो वहाँ पे वो कुछ बोलते नहीं हैं या कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तो या तो वो सहम जाते हैं या हमारा नोशन वैलिडेट हो जाता है कि उनको नहीं आता कुछ. सो दिस पार्टनरशिप, this intergenerational partnership that is needed among young people and adults to actually help young people thrive. The idea that space, you'll just vacate a seat and a young person will be able to occupy it, is flawed. Are we going to support young people to take better decisions, to lay out the options, to bring our wisdom? And so in there, I think there is also something for young people to think about, is how do we invite some of that intergenerational wisdom, some of the experience of those with some gray hair, a lot of gray hair, no gray hair, whatever you may be, no hair, but the importance of actually, so young people have this responsibility also to recognize that there is wisdom to be borrowed from, and there is then so much sort of creative co-creation that can happen, which brings us new answers. But it also means that young people need to invest in themselves and invest in their own learning and their own leadership. So are they going to take the responsibility to grow, just as some spaces get created for them? So it's a very interesting we framed it as youth duties and rights, right? So the duty for young person to take leadership, but then they must have the right to take decisions. The duty of young people to create peace and harmony, but also for them to have enabling spaces that promote interaction with people who are different from them. The duty of young people to volunteer and participate in social change, but they have the right to livelihoods of their choice that are connected with their aspirations and passions, or entrepreneurial opportunities. So this dance that you were talking about, I think that to me was just, like fit in so well, which is, it is really just a dance of this intergenerational approach and the richness of every sort of identity, every kind of experience from across sectors. And that's what Vartaleap tries to do. Vartaleap, to just share a little bit, is a coalition of 100+ organizations across the country that believe in the vision that I shared earlier. Youth engaging organizations that see themselves as youth-centric, organizations that may work on different issues, but see youth as an important stakeholder, organizations that may not have really thought about youth-centric, maybe have other focuses, but can recognize that they are an important sort of a key partner to everything that they do. Non-organizations, individuals, people who represent donor agencies, people who might have government experience, people from the corporate world, because young people are everywhere. And so what we do need is people who can bring in experiences from wherever they may be, and then sort of try to co-create for young people and with young people opportunities that help them develop their leadership, but also then just take charge of their own communities, their own cities, their own worlds, with that kind of complement their passions. So that's what we try to do at Vartaleap.
थैंक यू. यू नो व्हाट स्ट्रक मी फ्रॉम व्हाट यू सेड, दो चीज़ मुझे बहुत मतलब रेजोनेट किया. एक तो था एक इमोशनल स्पेस. क्या हिंदी में इसका क्या होगा, अनुभव का स्पेस क्या होगा? भावनात्मक. थैंक यू. भावनात्मक स्पेस. वो, और दूसरा एक चीज़ जो बहुत रेजोनेट कर पाई, वो जो इंटरजेनरेशनल डायलॉग होना ज़रूरी है. और जैसे एक कोई राज्य में अगर राजा को कुछ हो जाता है और रानी को उसे वहाँ पे अगर आप बैठा दोगे, क्या वो बहुत फेमिनिस्ट प्रिंसिपल लाके वो रूल करेगी? क्या लगता है? नहीं कर पाएगी, बिकॉज शी विल ऑल्सो फॉलो वॉट इज़ देयर. सो दैट्स वॉट यू नो वी ऑल्सो इन आवर वर्क, दैट्स वॉट वी सी. और ये बहुत रेजोनेट किया, क्योंकि बर्डन दे रहे हो, लेकिन उसके लिए कौन सा कॉन्वर्सेशन, कैसे कैपेसिटी और सोच का परिवर्तन कैसे हो रहा है. तो उसको लेकर मैं जाऊंगी ईशानी के पास, क्योंकि जब यूथ के बारे में हम लोग सोचते हैं तो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेनिंग्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. तो आपके अनुभव इस चीज़ को लेकर इकोसिस्टम बिल्डिंग में क्या रहा है? Thank you, Anandita. Thank you for setting the language context also. As an Assamese who stays in Bangalore, Hindi मेरी strength नहीं है, but मैं कोशिश करूँगी हिंदी and English में switch करके बात करने के लिए. Before I begin, I'd like to set the context in the sense that who are young people that we work with. हम किन के साथ काम करते हैं? मैं Quest Alliance से हूँ. हम देखें, इंडिया वर्ल्ड का अब सबसे यूथफुल पॉपुलेशन में से है, एंड वर्कफोर्स में वर्कफोर्स से पहले 1.4 बिलियन यंग पीपल इंडिया में अभी फ़िलहाल रहते हैं. एंड इफ़ यू लुक एट द वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, इट रफली कम्स अप टू 42% ऑफ यंग पीपल आर राइट नाउ इन द वर्कफोर्स, इन द ब्रैकेट ऑफ 15 to 29. औरतों का अगर हम भागीदारी देखें, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, इट्स जस्ट अ लिटिल अबव 30%. For men, it's 77%, and this is the age group. This is essentially the kind of audience that Quest Alliance work with. Young people who are making transitions into the world of work. And we work in the skilling ecosystem, which is the training and vocational education space, जिसे TVET space कहा जाता है, और ITIs and NSTIs are really the institution which drive this ground पे वो लेके जाते हैं. In this context, अभी हम दुनिया को अगर देखें तो there's a lot of transitions, automation related transitions. AI is sitting knocking on our doors every day. There's worry about losses of jobs. There is a lot of climate change chatter, and therefore green energy transitions in factories, and therefore there's a increasing need for young people to quickly adapt and change. It's happening as I speak, and it's happening in the institutions that we work with and in. The content and the curriculum is maybe 10 years पीछे चल रहा है, और जो मार्केट फेसिंग नीड्स है वो बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है. इसके बीच में बहुत सारा, therefore we can see a lot of gaps here. So what a young person will essentially now need to make this transition smoother from a skill building to having jobs, being entrepreneurs, is essentially they'll have to be of course they'll have to be rightfully and gainfully skilled in that technical skill or that trade, but also they'll have to be skilled employable. And how do one become employable sustainably, ताकि मैं सिर्फ एक जॉब से दूसरे जॉब तक की जो जर्नी है उसको भी करूं, लेकिन मैं एक लार्जर करियर माइंडसेट भी रख पाऊं कि अगर ये जॉब मेरे लिए वर्क नहीं किया तो क्या मैं अपना स्ट्रीम चेंज कर पाती हूँ, अगर नहीं कर पाती हूँ तो किस लिए नहीं कर पाती हूँ, maybe I don't have that skill, can I upskill myself, can I reskill myself, वगैरह वगैरह. So this is the larger need of the young people that I work with, and I work largely with women who come into these institutional spaces, and women ITIs and NSTIs. Now, how do the ecosystem respond to all of this? I think in our opinion, in our approach, we've noticed that the best thing to do is start young. We start young on aspiration building, especially for women and young girls.
and aspiration building both at the professional and personal self, so that one is able to take those informed decisions and make career choices which are aligned with something they want to be. And how do they get there? They also need to know the way to get there. I want to get there, but what will be my journey? And it's of course a learning process. So that's one thing that we try to really foreground in our work. And for women, now the world of work is very complex, dynamic, fluid, and largely organized in traditional and non-traditional sectors, courses, occupations. And so it becomes increasingly important when we do our work, that female role modeling and aspirational building is very important. As long as women are in decent jobs, and by decent jobs I mean jobs which are safe, jobs which जहाँ से फेयर वेजेस मिल रही है और जिसमें ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है, अगर ये डिसेंट जॉब अगर हम कर पा रहे हैं तो doesn't matter if it's a traditional sector job or a non-traditional sector job. We believe that it's fine for women to go in traditional as well as non-traditional. So we don't really push women for the sake of pushing that non-traditional sector में ही जाना है. So as long as women also उनकी aspiration, उनकी अलाइन करती है उस जॉब के साथ, उस करियर के साथ, तो हमें लगता है कि ये एक राइट पाथ है चूज़ करने का. और दूसरा एक और तरीका जो मैंने भी ये रिसेंटली ही, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रेवोल्यूशन, दैट when we say women make choices, it's also, we'll have to, I think that sometimes these choices are also result of traditional norms, patterns, and it's especially women that we work with from marginalized backgrounds, socio-economic marginalized backgrounds, who may not have gone to college because they were not good at academics, and two, they needed immediate jobs right now after class 9th or 12th. So women like this will need additional family and that enabling environment at their homes, and that home environment, what we've noticed, is largely governed by traditional roles. If you look at the ITI में courses किस तरीके से traditional non-traditional courses और women focus non-women focus courses जो है, 13 courses में है women's participation is above 50%, rest all engineering focus courses में women's participation is almost less than 12%. So there is an element of traditionality involved there as well. So we also try to bring the other stakeholders जिसके अंदर actually power vested होते हैं, जो family होते हैं, institutions होते हैं, communities होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे powers vested होते हैं और वो actually decision maker होते हैं, जो women शायद overtly हमें दिखा पा रही है, but the decision is vested in them. So we try and work with these players as well on norm shifting, on understanding financial independence क्यों important है, और again role modeling कि these are the set of women who are from your community, they've done it, and so can your wards, daughters and girls. So that's essentially the lens we take. And I think the third component that we do very strongly is employability skills and career development. And within this domain, the major thrust of the work is to build an employable person, someone who may be a great plumber, someone who may be a great beautician, someone सिलाई बहुत बढ़िया आती है, बट नौकरी कैसे ढूंढनी है, नौकरी अगर मिल जाती है तो कैसे उस पर टिके रहना है, कैसे उस नौकरी से मुझे उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा, ग्रो कैसे करना है, वर्क स्पेस में लोगों से कैसे बातें करना है, वो जो 360 डिग्री एक प्रोफेशनल इंसान को बनाता है, वो स्किल्स भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड करियर डेवलपमेंट स्किल्स में वो कैसे जॉब ढूंढने से लेके फुल करियर को कैसे मैं अनुभव करूँ, उस पूरे जर्नी को लिव करने के लिए उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है. एंड अभी हमने फ़िलहाल एक we try to bring the industries to the institutes, because we've also seen there's a big gap on how industries approach ITIs. Industries do not look at ITIs as aspirational places to hire. They feel the content is outdated, the training is not good, these are seemingly rejects who come here, and our machinery is very evolved, यहाँ तो 20 साल पीछे चल रहे, so on and so forth. So it's very important to bridge the gap so that the industry can come, input into the curriculum, help
in giving exposure, giving lectures on what their industry, their place of work, corporations, self-help groups जो भी हो, वो कैसे काम करते हैं और एक window of opportunity पेश कर सके. So this is largely the ambit of the model we work on. And of course, while doing all of this, one has to situate this in an environment which is led by fearless explorations, right? Non-gendered practices, fearless explorations, learnings by mistakes, all of that has to be foregrounded while we do all of this. And we also use a blended learning approach because we've realized that there's a scale issue with ITIs. They're huge in number. There are rural ITIs, there are semi-rural, there are urban ITI centers, and उनके levels में भी बहुत difference होता है. इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि blended learning approaches जो tech enabled होता है और direct approach भी होता है, जहाँ हम खुद जाके काम करते हैं, बात करते हैं. So दोनों का एक mixture करके हम काम करने की कोशिश करते हैं. थैंक यू सो मच. एक्चुअली CFY के काम में क्योंकि अजमेर और जयपुर और उदयपुर में भी थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस चांस मिला, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने जो उठाया कि लड़कियों के लिए एस्पिरेशन तैयार करना, इट्स नॉट अ गिवन थिंग. मैरिज एक एंड इन इटसेल्फ, उसको शिफ्ट करने के लिए डिमांड जनरेशन करना, उसके लिए अल्टरनेट लाइवलीहुड का डिमांड, और जो गेटकीपर्स है समाज में, फैमिली में, उनको भी तैयार करना कि ये पॉसिबल है, और रोल मॉडलिंग इतना इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहता है ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट कर रहे हो उसके लिए सोचे पहले. तो थैंक यू ईशानी. अभी हम आएंगे पुष्पा जी से. इतना आप जिस कम्युनिटी को लेकर काम करते हो, तो अगर पावरलेसनेस के बात करें और स्टेक होल्डर्स और इकोसिस्टम के बारे में बात करें, तो ये संघर्षपूर्ण रहता है और ये कांस्टेंट बहुत रिजिलियंस लेकर काम करना पड़ता है. तो आपका स्ट्रैटेजीज़ क्या रहते हैं और कैसे वो रखते हो? सभी गुड इवनिंग और थैंक यू फॉर सेप्टिपिन कि एक प्लेटफॉर्म दिया. कि एक प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है कि मैं यहाँ पर एज अ स्पीकर मेरे समाज की बात को रखने के लिए किस तरह हम लोगों ने अपने वजूद की लड़ाई को लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक गए और हमने कहा हम भी इंसान हैं, पहली चीज़ तो. और आज 10 साल हो गए हैं, अभी भी हमें हर एक डिपार्टमेंट में जाके जागना पड़ता है कि हम इंसान हैं, हमें ये चीज़ चाहिए. क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आशीर्वाद सबको चाहिए पर मेरे घर के अंदर नहीं चाहिए. और जहाँ हम युद्ध की बात कर रहे हैं, यहाँ युद्ध को तो काउंटिंग नहीं किया गया है. मैंने बहुत लड़ झगड़ के युद्ध डिपार्टमेंट में जाकर के कहा कि आपकी जो जेंडर कम्युनिटी है उसके अंदर मुझे बोला कि इसमें कोई युद्ध दो. मैं कहा युद्ध एजुकेटेड है ही नहीं, तो मैं कहाँ से आपको ला के दूँगी, आप मुझे इन्वॉल्वमेंट करिए. तो बोला आपको नहीं कर सकते. फिर भी इन्होंने स्पेशली करके मुझे इंक्लूडिंग किया. और लास्ट ईयर जो सरकार थी उसने जो यूथ पॉलिसीज़ बनी उसके अंदर मुझे इन्वॉल्वमेंट करें. मेरे सेंटर पे आकर के हम लोगों ने 50 ट्रांसजेंडर्स को इकट्ठा किया और उनसे यूथ पॉलिसीज़ बनने की क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए का जो दोहरा सोच में हमने फिर भी उसमें इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी का लेकर के उसकी SOP बनाई. वो 10 करोड़ रुपए कैसे खर्च करने हैं, किस किस सेशन में खर्च करने हैं. और हमने सबसे ज़्यादा उसमें एजुकेशनल पे इम्पोर्टेंट ज़्यादा दिया, क्योंकि एजुकेशन यहाँ पर मैं देख रही यूथ की एजुकेशनल भी कोई बात नहीं कर रहा था, पर सबसे बड़ी चीज़ है कि एजुकेशनली स्ट्रांग होनी चाहिए. जब एजुकेशन स्ट्रांग होगा तो नॉलेज बढ़ेगी, वो गंदगी फैलाएगा नहीं है. स्वच्छ भारत मेरी जिम्मेदारी जिस चीज़ की होगी. अभी हमने हाल ही में मैंने गेटर के साथ में कचरा वॉक किया. जिस तरह लीडरशिप की बात करें, हम क्यों ध्यान दें कि वही करेगा, मैं क्यों नहीं. तो हमने जालाना से लेकर के हमने कमिश्नर साहब को सजेशन दिया, हमने उस दिन 2 टन कचरा इकट्ठा किया और उसी को देख के हेरिटेज ने आमेर मावटा में स्टार्ट किया. तो हम लोगों ने जब ये अपनी खुद की लीडरशिप पे बैठ के काम किया ना, तभी होता है. क्योंकि मैं किसी पे डिपार्टमेंट के डिपेंड क्यों हूँ कि डिपार्टमेंट ही मेरे को ये करके देगा, मुझे ये प्रपोजल लिख के देगा तो मैं आगे जाऊँगी. मैं खुद कर सकती हूँ. पर जब मैंने काम शुरू किया था 22 साल पहले,
तो एक आरएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर मेरे साथ चाय पीना पसंद नहीं करता, और अब ये समय है कि वो खुद मुझे बुलाते हैं और पॉलिसीज़ का चेंज हमें करना है। एम्पावरमेंट कैसे बदला जा सकता है समाज को, जिस समाज में न मैं पुरुष थी न महिला थी, फिर भी लड़ कर के आ गए युद्ध में। पर समाज में जैसे वॉश की बात करी, मना कर दिया, हमने कहा अलग क्यों चीज़ें, हम इंक्लूसिव की बात करें तो हमने वॉशरूम पे अभी हमने सारे साइनेज लगवाए, और अभी हाल ही में गैटर से भी मेरे पास फ़ोन आया कि वो मुझे साइनेज शेयर करिए, मैंने उनको साइनेज शेयर किया, तो गैटर में भी अभी वॉशरूम्स में लग जाएंगे। इवन शेल्टर होम रन करना भी हमारे लिए सबसे बड़ी डिविजन थी कि सरकार की तरफ से जिन बच्चे लाइफ में जीना चाह रहे हैं, पर सरकार का है 18 साल से ऊपर का, अब 18 साल से कम बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है तो उसको विडंबना कैसी है, क्योंकि 10 साल से लेके 18 साल तक की जो एज होती है उसमें माइंड बहुत ऐसी चीज़ होती है कि वो विडंबना कुछ भी गलत कदम उठा सकता है, या तो ट्रेन बैगिंग भी जाएगा या सिग्नल पे खड़ा रहेगा। पर हमने अपने लेकर के म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन से एक आश्रय स्थल स्टार्ट किया, उन बच्चों को वहाँ रख करके और ट्रेनिंग्स दे करके हिंदुस्तान जिंक कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो बड़े बड़े CRS फंड में हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ जाके बच्चों को रिकमेंड करके जॉब दिलाने की कोशिश करी और वहीं पर दिया। पर उसमें भी पहले सबसे बड़ी हमने ये किया कि उनकी पॉलिसीज़ में चेंज करना, उनकी गाइडलाइन में बदलाव लेके आना, तब जाके हम बच्चे वहाँ रिकमेंड करेंगे, ऐसे हम बच्चे आपको नहीं देंगे। और उनके यहाँ पर पहले जितना भी स्टाफ है उसको सेंसिटाइज करना, बाद में हम बच्चों, ताकि किसी बच्चे के साथ क्राइसिस ना हो या कोई इस तरह बनाना। और वो आज हमारे बच्चे काम भी कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट अगर यूथ का कहीं पे भी आप लोग कर रहे हैं तो इस समाज के बच्चों को भी छोड़े नहीं, इसको भी इंक्लूडिंग करके, ताकि कोई भी पॉलिसीज़ बने तो आने वाले टाइम पे जो या ट्रांस बच्चा हो, ट्रांस मैन हो। और ये सिर्फ हम भी बात नहीं करेंगे, हम ये देखिए कि सरकार ने इतनी बड़ी, अभी हमने उन्हें देखा कि उड़ान योजना बनाई, पर उड़ान योजना में ट्रांसजेंडर लोग को नहीं जोड़ा। जो ट्रांस मैन है, फीमेल से मेल बन रहे हैं, क्या उनको सैनिटरी नैपकिन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है? आखिरकार मैंने वापस चिट्ठियाँ लिखी, कंटिन्यू चिट्ठियाँ लिखी, उसके बाद जाके इन्वॉल्वमेंट हुआ और उन ट्रांस मैनों के लिए हमारे लिए सैनिटरी नैपकिन्स की जरूरत। तो ये चीज़ें हम क्यों बार बार वापस ही वही मुझे दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है? क्या ह्यूमन भी इंसान नहीं जाग रहा? क्योंकि मैं तो अलग से तो हूँ नहीं, आप लोगों के बीच में से निकल के आई हूँ। आसमान, मेरी माँ ने मुझे पाल के बड़ा किया, और जिस वक्त मैंने काम किया था कि लोग मेरे से त्रिकास बड़ी नज़रों से देखते थे 22 साल पहले। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, 2019 में एक्ट आ गया, रूल आ गया, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बड़ी पावर है। पर जिस तरह 22 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मैंने समाज के प्रति लड़ी, और आज राजस्थान के अंदर ट्रांसजेंडर बोर्ड बनना, पुलिस प्रोटेक्शन सेल बनवाना, उसके लिए हर थाने के अंदर नोडल ऑफिसर अपॉइंट करवाना, ये विद सिंगल वुमेन फी मैंने इसको किया। वो किसके भी यहाँ पे, जब मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाथ में था, 2019 का एक्ट मेरे हाथ में था, तब जाके कर पाई। नहीं तो मैं क्या समाज में से निकले हुए बच्चों को क्या अपनाना जरूरी नहीं था? क्योंकि अभी भी हम देखें एजुकेशनली बड़ा स्टिल डाउन है हमारे समाज का। फिर भी हमने अभी जा कर के NIC सेंट्रल से जा कर के लेटर दिलाया उन बच्चों की जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनके एजुकेशनली फ्री हो। NIC ने हमारे साथ एक गाइडलाइन MOU साइन किया और उन बच्चों की फ्री एजुकेशन के लिए बात करी। एक लेटर दिल्ली से और निकाला, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में उन बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन के लिए बात करी। क्यों हम बार बार सरकार पे जाके लेटर दिखते हैं? क्या यहाँ बैठे हुए सोशल वर्कर जो बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात कर रहे हैं, क्या उस समाज के बच्चों के लिए किसने बात नहीं करी? किसने सोचा भी नहीं? मैं सुबह से देख रही थी कि अभी तक किसी ने भी जो अपने ग्रास लेवल पे काम किया, सॉरी मैं वर्क को लेके बात कर रही हूँ, कि किसी ने ये नहीं कहा कि हमने जेंडर इंक्लूसिव में काम किया, हमने ट्रांसजेंडर्स लोग के साथ भी मिले, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस लोग बात शेयर कर रहे थे, तो मुझे लगा, और मैंने जाके बात भी करी, तो उन्होंने कहा ठीक है कि आफ्टर लंच में हम आपका, क्योंकि मेरा पैनलिस्ट में नाम ही नहीं था, पर जैसे मैंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके एक्सपीरियंस और हम जेंडर इंक्लूसिव को हम साथ में रखेंगे, तो हमें आपके साथ का। तो एक सबसे बड़ी चीज़ देखो कि मुझे जगाना पड़ रहा है कि मेरा समाज भी जगह जगह पे है,
वो भी बच्चे हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं, उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का काम है। उन्हें भी जिस तरह आम इंसान को, यहाँ प्रवाह के साथ मैं 2012 से जुड़ी हुई हूँ, सीफर का अभी कविता के साथ मैं अब 2012 साल जुड़ी हूँ। तो कई ऑर्गेनाइजेशन, मैं सिर्फ सिंगल क्यों, आने वाले और बच्चे भी आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और आगे हैं और अपनी बात को रख पाए। और दूसरी चीज़ आपने कहा कि डांस की बात करते हैं, इंटरेक्ट की बात करते हैं, यहाँ तो विडंबना ऐसी है कि मिथ्याएं बनी हुई हैं समाज के प्रति। उन मिथ्याओं को जब तोड़ेंगे तभी तो हम उनको आगे आकर के उनके साथ इंटरेक्ट होंगे और जाकर के समाज को जोड़ेंगे। अभी तो सिर्फ देखते ही हम अलग अलग भावनाओं, मन में विचार अलग अलग निकाल लेते हैं। तो समाज के प्रति जिस दिन दोहरी सोच और हमारा नज़रिया बदल जाएगा, समाज ऑटोमेटिक मुख्य धारा से आ जाएगा। और उसके लिए भी सही चीज़ है कि हमने इंक्लूसिंग की बात कर रहे हैं तो हम अलग अलग क्यों करें, जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ हल्को हमें अपनी जो भी गाइडलाइन है, अपनी पॉलिसीज़ है, उसमें हल्का सा चेंज लेके आना है। उसमें हमारे समाज को और जोड़ करके हम जेंडर न्यूट्रल करके हम पूरे समाज के साथ काम करने की कोशिश करें। हम ये क्यों कहें फीमेल की या किशोरी के साथ काम करते हैं, हम ये क्यों हम यंग पीपल के साथ, हम कहें ह्यूमन बीइंग के लिए काम करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हम सबके लिए करते हैं, एक्चुअली एक जेंडर के लिए नहीं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। मुझे 3 चीज़ उभर के आया आपके प्रेजेंटेशन से, और मुझे लगता है ये हम सबको, जो हम इकोसिस्टम्स को लेकर काम करते हैं, 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना पड़ेगा। एक तो है खुद पे भरोसा। We will go try to change, have conversation, it won't happen, but then we don't lose hope, but keep at it, जिस जैसे वो किए। दूसरा है जब कोई सिस्टम में कोई चेंज आता है वो वहाँ पे ही समाप्त नहीं हो जाता है। वी नीड टू वर्क ऑन इट। जस्ट बिकॉज रिजर्वेशन आया है इसका मतलब नहीं है कि बिहेवियर, एटीट्यूड चेंज हो गया है। सो वी हैव टू कीप द कॉन्वर्सेशन ऑन एंड कॉन्स्टेंटली हिट बैक। और तीसरा जो चीज़ आपने कहा, कम्युनिटी बिल्डिंग इतना ज़रूरी हो जाता है, एक एक करके कम्युनिटी बनाना पड़ता है और दूसरे कम्युनिटी के साथ भी योगदान होना चाहिए। और इसी को लेकर हम वंजिमा के पास आएंगे। आपका क्या तजुर्बे रहा है इकोसिस्टम के साथ काम करने में? मेरे हिसाब से इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हम हैं, जो NGOs जो यूथ के साथ काम कर रहे हैं, या आंदोलन जहाँ पे बहुत सारे इंटरजेनरेशनल चर्निंग हो रहा है, अभी बहुत सारे विवाद हो रहे हैं अलग अलग जनरेशन्स के बीच में, या फिर मैं अपने आप को डोनर ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 10 साल में जो काम कर रही हूँ, हम भी इकोसिस्टम का एक पार्ट है और रिसर्चर भी हूँ मैं, तो हमारा नज़रिया भी, तो वी आर ऑल एक्चुअली आई थिंक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और आपका जो ये जो LMPG फ्रेमवर्क था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो सब टाइटल है उसका, लिव विद राइट्स, मूव विदाउट फियर, ग्रो विद प्राइड, प्ले विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो आपका हक, ये जो सब टाइटल है एक्चुअली समहाउ द अदर वो सिविल सोसाइटी का एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है किसी तरह से। तो तो आई स्पीक एक्चुअली, ये जो आपने जो डांस के बारे में बात किया, सिस्टम और यंग पीपल, उसके बीच में हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सो आई थिंक मेरा जो स्टैंड पॉइंट है वहाँ से मुझे ये दिखता है कि सिस्टेमिक बायस बहुत क्लियर है, लेकिन जो संस्थाओं के साथ मैं पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ एज अ डोनर, एज यू नो रियली रिसर्च ग्रांट मेकिंग में और बहुत सारे पार्टनरशिप में, बहुत अलग अलग तरीके से, ये मुझे धीरे धीरे में नज़र में आ रहा है कि हमारा भी एक एज लेंस बनता जा रहा है। जितना हम रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं, हमें भी एक ये बात में एक नया नज़रिया, नया चश्मा हमको भी मिल रहा है, दैट कैन एक्चुअली कुछ दरवाजे खुल रहे हैं उससे। और मैं उदाहरण दूंगी कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगी। जैसे कुछ हमारे पार्टनर्स हैं जो हेल्थ में काम करते हैं,
जो अपना डेटा को देख के उन्होंने रियलाइज़ किया कि यंग पीपल अस्पताल में तभी आ रहे हैं जब सुसाइड का केस हो रहा है या कंटेस्टेड अबॉर्शन के टाइम पे आ रहे हैं, और किसी भी रीज़न के लिए यंग पीपल हमको अप्रोच ही नहीं करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो दे डोंट फील इट्स एडोलेसेंट फ्रेंडली सेंसिटिव, वो उनका सुनवाई नहीं होगा वहाँ पे। लॉ में भी हमारे पार्टनर्स ने देखा कि जो लॉज एक्चुअली यंग पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए है, एक्चुअली उनको हार्म कर रहे हैं। चाहे वो चाइल्ड मैरिज लॉ हो, जो इलोपमेंट के खिलाफ जो एक्चुअली क्रिमिनलाइज कर रहे हैं यंग पीपल को, अंडर एज सेक्सुअलिटी, एज ऑफ कंसेंट क्योंकि अभी 18 बढ़ा दी गई है, उसके वजह से हम देख रहे थे। और ये मेरे लिए एक बहुत एक्चुअली इतने साल से मेरा भी एज लेंस बड़ा है, और मैं जो हिंसा के ऊपर काम कर रही हूँ इतने साल से, मैं भी पिछले 4-5 साल से मैं देख रही हूँ कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन और गर्ल्स तो हम बोल लेते हैं एक साथ, लेकिन एक्चुअली वायलेंस अगेंस्ट विमेन और वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स अलग चीज़ें हैं। और बहुत ज़्यादा चुप्पी है यंग पीपल के वायलेंस के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो मेरा बाहर जाना बंद हो जाएगा। जो मेरे एस्पिरेशंस हैं, जो सिविल सोसाइटी एक्चुअली इनकरेज और बढ़ा रहा है, वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है, यू नो, इन टॉकिंग, इन ब्रेकिंग द साइलेंस अबाउट वायलेंस। और संस्थाएं जो काम कर रहे हैं, जो शेल्टर्स पे काम कर रहे हैं, वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि एक्चुअली मैरिटल वायलेंस पे हमने तो इतना बड़ा ढांचा बनाया है, इतना काम हुआ है, लेकिन नेटल फैमिली वायलेंस पे हम अभी भी बहुत पीछे हैं। तो हमारा भी नज़रिया जो बदल रहा है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अच्छा ठीक है, तो हमारा नज़रिया बदला है, लेकिन अब हम करें क्या? तो टूल्स अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो बैठ के गोल बैठ के हमारे गाने अलग हैं, हमारे मतलब जो तौर तरीके हैं काम करने का ग्रास रूट्स में, कम्युनिटी में, वो अलग हैं। यंग पीपल के साथ कैसे काम करना चाहिए, दैट इज़ अ लेसन दैट वी ऑल्सो हैव टू लर्न। टूल्स वी हैव टू बिल्ड, वी आर बिल्डिंग, बट हम सीख के वी आर गोइंग देयर। हमको ये एनर्जी भी देता है यंग पीपल के साथ काम करने में, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमारा कंफर्ट जोन से हमको बहुत ज़्यादा बाहर जाना पड़ता है इसके लिए। आज हमने सुबह शुरू किया, लाइक हमारे गाने भी हैं, लेकिन बॉलीवुड को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। पॉपुलर कल्चर के बारे में हमको वी हैव टू एक्सेप्ट छैया छैया एंड ऑल दैट एज पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट मूव अस। फन, प्लेजर, लेजर, ये सब के भी हमारे स्ट्रैटेजीज़ हमको इवॉल्व करने पड़ेंगे। हमको टेक्नोलॉजी के बारे में, सच अ बिग एक्चुअली शिफ्ट फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना, एम्ब्रेस कैसे करना, talking about body, beauty, image. I mean, these are all things that actually we are not always ready yet. And we are also learning by doing with young people. So and even things like जो आपने स्किलिंग के बात की या लाइवलीहुड्स के बारे में, बहुत फिक्स्ड पोजीशन रखना जब हम यूथ के साथ इकोसिस्टम को वी आर ट्राइंग टू रियली फैसिलिटेट दैट, इट्स हार्ड, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हमारे सोच हो सकता है दैट वी आर एक्चुअली वेरी क्रिटिकल of neoliberal economies and so on, but we also want to partner with the corporate world. And we can see कि आज हमारा जो guests आए थे, we see कि actually states, corporations, उनका भी रूप बदल रहा है और उनका approachability भी अब बदल रहा है. So it is really pushing us out of our comfort zone. I think even for donors के लिए हमने देखा है पिछले एक्चुअली 10 साल में कि जो हमको लगता था सक्सेस है, जैसे कोई ग्रुप ऑफ गर्ल्स, वो लोग चलो शहर में मूव किया, उनको कैफ़े कॉफ़ी डे में या कुछ में नौकरी मिला, बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर हम 2 साल बाद वापस जाते हैं तो वो लोग वापस आ गए गाँव, क्योंकि वो शहर में नहीं रह पाए। तो ये जो सक्सेस था वो फेलियर बन जाता है, फिर से कुछ और। सो वी रियली हैव टू कीप रिविजिटिंग दिस idea of what is the success, what is failure, and actually see it as learning. We are in a loop of learning and experimentation, and that's the only way actually that we'll find what solution works given the changing context that we're in. So I'll be here, but I'll stop here for now. Thank you. जो अगेन उभर के आया was
को क्रिएटिंग एंड को इवॉल्विंग, बार बार रिविजिट करना और नया प्रश्न को खोजना और नई तरीके से ढालना. अगर मैं आप सभी को और एक प्रश्न करूं, इन योर एक्सपीरियंस इफ़ यू इकोसिस्टम को इनेबल करने के काम में अगर एक क्रिटिकल चैलेंज आपका रहा होगा कि ये नेविगेट करना बहुत ही मुश्किल है, बार बार यहाँ पे आके रुक रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया बेस्ट प्रैक्टिस, आई मीन दिस वर्क्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत यंग लोग हैं जो इसको लेकर काम कर रहे हैं, तो व्हाट एडवाइस विल यू गिव देम इन टर्म्स ऑफ दिस वर्क्स और ये चैलेंज रहा. हाँ, तो एनीबडी कैन गो फर्स्ट. Yeah, I think I've mentioned this last time I was speaking also. What we've noticed is skilling बढ़िया से हो जाता है इंस्टीट्यूशंस में. वो आते हैं 1 साल 2 साल का ट्रेड स्पेसिफिक कोर्स कर लेते हैं लड़कियाँ, बट जब प्लेसमेंट्स की बात होती है उनको जॉब भी मिल जाता है, वो उसको भी नेविगेट कर लेती है, बट ऑफ़र भी मिल जाता है उनको, लेकिन वो फिर फर्स्ट डे में दे डोंट कम फॉर द जॉब्स बिकॉज उस प्लेसमेंट ऑफर लेटर मिलने से और फर्स्ट डे के बीच का जो जर्नी है उसमें नेविगेशन का बहुत इशू रहता है, क्योंकि फिर वो दूसरे स्टेक होल्डर्स, वो इंस्टीट्यूशन स्टेक होल्डर्स हो गए, उनके ट्रेड ट्रेनर्स बोल देते कि ये सैलरी अच्छा नहीं है, ये मत करो, ये जगह अच्छी नहीं है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये मत करो, तुमको तो इतना सैलरी बेसिक तो मिलना ही चाहिए. घर जाएंगे माता पिता बोलेंगे कि नहीं, ये डिस्टेंस इज़ नॉट इन, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जाएगा वगैरह वगैरह. सो ऑल ऑफ these things and peers से भी कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है. एंड और एक सेल्फ में भी लैक ऑफ अवेयरनेस कि why do I want to do that job, क्या वो मेरे को रिटर्न्स देगा नहीं देगा. All of these things really play a huge factor, and we've noticed that it impacts a lot of female placements. And so we've not really figured out a solution. We work with family, we work with the institutions, we work with the employers to bridge some of these gaps we try to bridge, but we've not arrived at a solution because the time frame that these girls spend in the institution is only 1 year. So we have access to the community, access to that set of parents also for a year, and it's very difficult to change social norms and really perceptions. And some of them are not just perceived perceptions, there are safety issues, there are issues where girls have joined large scale industries and the industries were not receptive to their needs. In machines के size अलग तरीके से होते थे, वो lift नहीं कर पाते थे, even though automation could be enhanced, वो नहीं करते थे, policies gender inclusive नहीं होती थी वगैरह वगैरह. So कुछ perceived realities भी है और कुछ fear भी होती है, traditionality से भी impact होता है. So that's one. One thing that I'll stop you with one, and I'll just invite any one of you because I've been told अभी wrap up करो. हाँ, so signals मिल गया. हाँ. So I think very quickly एक मुझे लगता है challenge है, a young person, actually all of us citizens are products of the ecosystem. तो attribution बहुत बड़ा challenge है. What worked, for a person, no one knows, and it's very difficult as organizations who have say niche areas कि मैं X type की capacity building पे मैं काम करती हूँ, आप legal end पे काम करते हो, कोई और education end पे काम करते हैं. We don't know what worked, and I don't think it matters, but somewhere in the world it matters in terms of how you tell the story, where investment should be made. तो वो सारा एक साथ calculate करना बड़ा मुश्किल होता है. Just in terms of what works, I think is if you can get the attribution piece out of your head. मेरे ख्याल में सुनीता जी कह रही थी designs where we are designing for seeing the world together, we are designing for just being, and we are designing for doing. I'm not going into explaining what each of those things are, but I think when we are designing well, then you're keeping the ecosystem in mind and you're keeping in all of those factors, and it is nourishing and it's has much greater potential. So yeah, that's what's worked. Right. एक अभी और छोटा करेंगे. हाँ, 1-2 शब्द में. यहाँ बिल्कुल अपोजिट है. यहाँ बिल्कुल अपोजिट है
कि पहला तो कोई देना चाहता नहीं है काम ट्रांसजेंडर्स को, कहने को सब लोग कहते हैं पर देना नहीं चाहता, पर यहाँ पे जब देते हैं तो आपकी कंपनी आपने दे दिया, पर वहाँ पर आने वाले जब क्लाइंट आते हैं उनकी जो नज़रें, जब मैंने पहले जिक्र किया, वो कटाश भाई नज़र, तो आपको मजबूरन होकर के जब वो बार बार क्लाइंट आपको पुशअप करते हैं तो आप पहले आपके लिए मस्त क्लाइंट होता है तो आपको मजबूरन उनको मनाही करना पड़ता है। तो यहाँ अपोजिट ही है कि वैसा चीज़ यहाँ लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी सेंसर डाटा या जो सीआरएस फंड को दिखाने के लिए कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट तो कर रहे हैं, पर दिक्कत जिस तरह जुड़ना चाहिए, जुड़ाव से कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट होकर के साथ काम करने, पर वो कितने 2 या 4% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनको हम रिकमेंड कर पाए, अदरवाइज तो सब 10th से कम ही एजुकेटेड है, तो उनको कहाँ जॉब का प्रॉपरली, तो वो स्किलिंग में जा रहा है, पर स्किलिंग में भी वो लाइवलीहुड प्रॉपरली नहीं है। वन चैलेंज, अब हमारा एक पार्टनर अन्वेषी ने एक रिपोर्ट लिखा था, एंड दैट आई थिंक दैट टाइटल रियली स्टेड विद मी, मेट्रोपोलिस एज पेट्रियार्क। जो शहर है वो एक्चुअली एक महापित्र है, मतलब पितृसत्ता का महापित्र है। तो फैमिली जैसे, और वो भी चाहे वो हॉस्टल हो या वर्क प्लेस हो, वहाँ पे सब custody, they see themselves as custodians of especially young women but overall youth. तो उसमें जो उनका समझ में जो परिभाषा है केयर का, वो है पेट्रोलिंग, प्रोटेक्शन। तो ये परिभाषा कैसे बदलें, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। और कोई इमेजिनेशन नहीं है हमारे पास कि एक्चुअली इसका मतलब क्या हो सकता है, एक शहर क्या हो सकता है फॉर यंग पीपल। तो दैट इज़ अ वेरी लिमिटिंग थिंग फॉर अस। और जो एक बहुत ही होपफुल चीज़ है वो, और क्रिटिकल चीज़ है वो है सिर्फ सेफ स्पेसेस नहीं बनाना, लेकिन डायलॉजिक स्पेसेस बनाना, जहाँ पे हम पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकें, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बिल्ड होता रहे, कलेक्टिव वॉइस, कलेक्टिव पावर बिल्ड होता रहे। और मतलब क्योंकि हम सेफ स्पेस होके वी कम टुगेदर, हम सब वी रियलाइज दैट द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, लेकिन जब हमारे डिफरेंसेस निकलने लगते हैं, चाहे वो ट्रांस कम्युनिटीज़, ट्रांस यूथ आते हैं ग्रुप में, या फिर मैरिड गर्ल्स भी आते हैं, आपने जैसे बोला यूथ आर नॉट अ होमोजेनस कैटेगरी। तो जब बहुत सब अलग अलग आइडेंटिटीज़ आते हैं तो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। तो हाउ टू मेक अ सेफ स्पेस, अ डायलॉजिक स्पेस, अ प्रोडक्टिव डायलॉजिक स्पेस, जहाँ पे यंग पीपल का एबिलिटी टू निगोशिएट, envision, imagine, bargain with patriarchy just gets stronger and stronger. थैंक यू मोंजिमा। अभी टाइम बहुत शॉर्ट है, हम लोग ओपन अप नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को लेकर। एक चीज़ दिमाग में आ रहा है, एक बुक पढ़ रही हूँ इकोनॉमिस्ट ऑटो शैमर का, थियरी यू, और वो एक टूल बताते हैं। वो बोलते हैं जो सिस्टम चेंज के लिए कॉन्शियसनेस बेस्ड सिस्टम चेंज, और उसका जो टूल वो बताते हैं कैसे कॉन्शियसनेस को अगर काम नहीं करेंगे सिस्टम में तो सिस्टम चेंज नहीं होगा। और जो टूल वो बताते हैं वो बोल रहे हैं डीप लिसनिंग, और डीप लिसनिंग के वो 4 स्टेप्स बता रहे हैं। पहला स्टेप वो बता रहे हैं, हम जब लिसन करते हैं we only search for stuff we know. We only listen to those that we already know. The second step he calls scientific listening. We tend to listen to things which are new, we don't know. But he says system changing begins with step 3. He calls it listening with your heart, where it's empathy that you experience. एक इमोशनल बॉन्ड बनते हैं सिस्टम्स के साथ, और उसको सोचने के लिए मजबूर करते हो। वो जो बोल रहे हैं, जो पोजीशन ले रहे हैं, तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है, वो क्यों बोल रहा है, उसमें इंटरेस्ट क्या है, और यू स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस। और फिर वो बताते हैं एक 4th लेवल है जो एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिसनिंग, वो इसको बोलते हैं लिसनिंग ओपन, लिसनिंग विद ओपन विल। और वो बताते हैं जब वो उस
नज़रिए से जब आप लिसन करते हो तो आप फ्यूचरिस्टिक लिसन करते हो, जो बोला नहीं गया, जो सोचा नहीं गया, वो वही स्टेप। तो लीडरशिप के बारे में वो बताते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप इज़ अबाउट taking this journey of listening and taking the system through the process of listening. I will end here. Thank you, all of you, our panelists and the audience, for giving such a patient hearing. Thank you. Thank you, Anandita. What a beautiful thought to take back home from today. I will request everybody to stay back for one photograph. We thank our moderator Anandita and the panelists for sharing their insights on your contributions have been invaluable in shaping our understanding and paving the way for more supportive environment for youth and gender inclusiveness in our cities. This brings us to the end of the day, not to the end of this beautiful journey. On behalf of SafeTipun, I would like to extend my heartfelt gratitude to each and everyone who has graced us with their presence at this conference. First and foremost, we express our deepest appreciation to our distinguished speakers and panelists for sharing their invaluable insights with us. Your experience has enriched our understanding and inspired fruitful discussions that will undoubtedly pave the way forward for the Cities for Youth program. We also thank our attendees for their enthusiastic participation and contribution throughout the conference. Your questions, comments, interactions have added immense value to the exchange of ideas and fostered an environment of learning and collaboration. We are grateful to Fondation Botnar for their generous support and unwavering commitment to improving the well-being of young people. A special word of thanks to our partners Susanna Hossman and Siddharth Jha for their continued support and contribution to the Cities for Youth program. We would like to express our gratitude to our implementing partners. Okay, so as and when I say your names, or names of your organizations, please smile, wave, hoot, whatever you want, but just register yourself in the audience. We extend and express our gratitude to our implementing partners. First of all, Mahila Jan Adhikar Samiti, the YP Foundation, School of Planning and Architecture, Delhi, Prava, the loudest, huh? Nice. Our local partners, Azad Foundation, Center for Advocacy and Research, CFAR, and Share a Smile Foundation for the collaboration in building the CFI program in Rajasthan. These partnerships have been invaluable in ensuring the relevance and impact of this program on the local communities and beyond. We thank Startup. We thank Startup, our knowledge partners, for keeping us focused on our program and sometimes pulling our ears. We thank our TAG members, all of them who are present here and who are not present here, for your insights while designing the program objectives. A special thanks to Sunita Dhar, TAG member, and Manisha Gupta from Startup team for their support in planning this conference. Last but not the least, I want to acknowledge the SafeTipun team. Kalpana, Sonali, Surya, Priyanka, Pragati, Ritvika, Tanya, who have worked tirelessly behind the scene to ensure smooth execution of every aspect of this conference. They say, coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is success. Day before, someone wrote us an email. They made a small error in that, and they wrote cuties for youth. All of us really liked it. So here we are, cuties for youth, signing off for you. Have a great day and have a pleasant evening. But before we sign off, big thank you to Niruja and a big congratulations for running the day wonderfully. Yes. She has really worked tirelessly. She hasn't slept.
And when Sonali couldn't come very last minute, she took it all on her shoulders. So, yes. But we really miss Sonali who guided this project. Before we leave the room, so we have the Jane's Walk, which is starting in like 5 minutes. Everybody who has registered for it, I know it's been a long day. It's the right time to step out of this room and get some fresh air. So join us for the Jane's Walk, whoever can. We have a registration desk outside where you can sign up and we'll give you the instructions here itself. So stay back here so we can give you the instructions. Tomorrow we are starting an early day at 8:30. All the young people who are participating tomorrow, please register yourself at 8:30. We have 3 exciting workshops planned for you. पहला workshop है third eye की तरफ से using cinematography for telling your own stories. Second workshop is with Safety Pin, understanding urban well-being better. And the third workshop is by We the People Abhiyan, Constitution और अपने हक की बात करने के लिए. I request everybody who's joining us tomorrow, please have your breakfast. Whoever is checking out tomorrow, check out from your rooms and join us here at 8:30 sharp. Thank you. Have a great day. And for the Jane's Walk, please continue to stay in this room.